Next question. Two waves are represented by equations y1 equal to a sine of omega t plus kx plus 0.57 मीटर. आपको पता होना चाहिए कि ये होता है फेज ऑफ द वेव y1 which is 0.57 and y2 equal to a cos of omega t plus kx. x is in meter, t is in second. The phase difference between them is. फेज डिफरेंस निकालने के लिए पहले दोनों को या तो साइन में या तो कॉस पे लाना पड़ता है. यहाँ पे एक कॉस है एक साइन है, या तो पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या तो दूसरे इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करो. इजी इज टू कन्वर्ट सेकेंड वन. आपको पता है कॉस ऑफ थीटा या फिर साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. तो दिस विल बी ऑफ कोर्स, यहाँ पे आप लिखोगे पाई बाई 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा. दिस इज थीटा. ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये जो एंगल होता है इसको आप बोलते हो फेज डिफरेंस ऑफ द वेव, राइट. तो फाई 1 इज 0.57 एंड फाई 2 इज पाई बाई 2. तो फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई इज फाई 2 माइनस फाई 1. तो पाई बाई 2 माइनस 0.57, लेकिन पाई की वैल्यू होती है 3.14. तो 3.14 by 2 minus 0.57. 3.14 by 2 is 1.57 minus 0.57, that is 1 radian. So option number A, phase difference is 1 radian. Next question. A man is watching two trains, one leaving and the other coming in with equal speed of 4 meters per second. If they sound their whistles, each of frequency 240 hertz, the number of beats heard by the man if the speed of sound in air is 320 meters per second will be equal to. So you have an listener is at rest. Listener is at rest. And you have two trains, one is coming in and other is leaving. तो आपके पास you have two trains. So there are two trains. First of all, दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी सेम है. तो this is basically approaching and this is basically leaving, receding away. ये one, ये two. अब आपको पूछा है व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी. ऑब्वियसली बीट फ्रीक्वेंसी विल बी द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द लिसनर बिकॉज ऑफ दीज टू ट्रेन्स. इन दोनों ट्रेन पे जो विसल ब्लो हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा. और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेन नंबर 1 इज अप्रोचिंग, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन इज ग्रेटर देन रिसीडिंग ट्रेन. तो बीट फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली विल बी frequency of approach of the first train minus frequency of recede of the second train. तो ये आपको पता होना चाहिए straight away. And of course in both cases listener is at rest. तो जब listener rest पे होता है तो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर बनता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी V upon V and Vs. करेक्ट. दोनों केसेस में in both the cases you will have the same thing, more or less the same thing. आपको ऐसा ही मिलने वाला है in both the cases. Okay. सिर्फ आपको डिसाइड ये करना है, only thing that you have to decide is approaching. Approaching के केस में apparent frequency is greater than real, और वो होने के लिए numerator should be greater than denominator, minus and plus. अब इसमें से जो जो कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो. So you have N0V common and then you will have 1 upon V minus Vs minus, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक माइनस साइन आएगा तो ये माइनस साइन आएगा. तो माइनस 1 अपॉन V प्लस Vs. गुड. अब एक काम करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट वैल्यूज. So when you put values here, N0 is original frequency which is
240 hertz. Speed of sound is 320 और 1 upon v minus vs. v कितना है 320 और vs कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब -4 minus 1 upon 320 plus 4. Good. So this is equal to 240 और ये 320, ये 1 upon 316 minus 1 upon 324. So this is equal to 24 into 32 into 100. 324 minus 316, 8 upon product of 316 and 324. So multiplied by 8 and product of 316 and 324. Fine. Answer should be rough. Rough calculations कैसे आएगा? Simple है. Extremely simple. You need to know tables. You need to know table of 4 and that's it. That's all you need to know. Table of 4. So if I say this is 2 this is 8 and 1 बराबर 81 और मैं इसको 80 मान लेता हूं. 80 मानने से क्या होगा, ये आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, 24 ज़ा और 25 ज़ा. और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1 and 8. इसके बाद ये होगा कि ये हो जाएगा आपका 10, 24 into 8 into 10 और नीचे आ गया 316. Fine. Now if you want you can do further approximation. इसको 300 भी मान सकते हो. 300 मान लिया तो फिर बहुत इजी हो गया, क्योंकि 300 मतलब 3 into 100 और 1/3 is 0.33. या फिर then you have again this is 7, 4 7s are 28, right? 4 7s are 28, then 9 है ना. 79 4 दा करके देखो, 84 दा कितना 320, उसमें से 4 ज्यादा है तो 4 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 79 4 दा होगा. करेक्ट है. फाइन. इज दिस क्लियर? यस. ये ऊपर बच गया 2, क्योंकि हमने क्या लिखा 4 का, राइट 4. अब इसको वापस से 80 मान लो. अप्रोक्सीमेट ही करना है तो अप्रोक्सीमेशन करो ना, इसको क्या प्रॉब्लम है. 24 into 2 into 10, वापस से इसको 80 कंसीडर कर लो. ठीक. 1416. आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Next question. A wire under tension vibrates with a frequency of 450 per second. What would be the fundamental frequency if the wire were half as long, twice as thick, and under 1/4 of tension? आपको एक वायर दिया है जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 450 पर सेकेंड, मतलब n की वैल्यू दी है. अब अगर हमने वायर का लेंथ हाफ कर दिया, थिकनेस ट्वाइस करना मतलब रेडियस ट्वाइस करना, और उसका टेंशन 1/4 कर दिया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है. तो इजी है. अब मैं यहाँ पे ज्यादा डेरिवेशन नहीं करूंगा. यू नीड टू रिमेंबर कि हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट ऑफ t पाई r स्क्वायर रो, ऐसा हमने ऑलरेडी किया है, and we have done this minimum 5 times, so we will not derive this again. What you know is a wire मतलब same wire, मतलब density is same, और टेंशन चेंज किया, r चेंज किया और l चेंज किया, तो r is proportional to 1/l. r स्क्वायर का रूट मतलब r, और ऊपर आएगा रूट ऑफ टेंशन. गुड. तो अभी आपको गिवन में क्या दिया है, L2 is L1/2, क्योंकि लेंथ हाफ किया है ना. इफ द वायर वेयर हाफ एज लॉन्ग, ट्वाइस एज थिक, मतलब R2 is 2 times of R1 and tension was 1/4, तो T1/4. गुड. तो यहां से आपको N2 फाइंड करना है. N2/N1 is
अंडर रूट ऑफ, पहले टेंशन का देख लेते हैं, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो T2 बाय T1, L एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे L1 R1 अपॉन L2 R2, T2 by T1, T2 by T1 is 1 by 4, 1 by 4, L1 by L2, L1 by L2 is 2, R1 by R2 is 1 by 2, कैंसल कैंसल, 1 by 4 का रूट इज 1 by 2, मतलब N2 will be N1 by 2, मतलब 450 by 2, मतलब 2 to 5 hertz. ऑप्शन नंबर ए. Next question. The equation of displacement of a stretched string is given by y equal to 4 sine of 2 pi t upon 0.02 minus x by 100. X and y are in centimeter, t is in second. Find the frequency, velocity of the wave and maximum particle velocity is. So first of all आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, what is wave velocity. एक wave है, if it is going forward, मतलब it is progressive, तो v equal to n lambda, and at the same time particles of the medium they are oscillating, मतलब they are performing SHM, or particle performing SHM speed is omega under root of a square minus x square, but they are asking you maximum, तो अगर याद होगा Vmax was a omega. गुड, तो ये बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए. नाउ ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू सेव टाइम, क्योंकि 3 पैरामीटर फाइंड करने हैं, तो हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग, ये भी एक क्वेश्चन होता है. और हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक, फ्रीक्वेंसी चारों केसेस में सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करके मतलब नहीं है, बिकॉज यू नो, अब लगने तो वाला है हमको, बट एनीवेज विल सी. उसके बाद वेव वेलोसिटी 3 केसेस में सेम है, और पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम ये हर एक केस में अलग अलग दिया है, मतलब ऑलवेज स्टार्ट विथ पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. तो अगर आपको मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी Vmax का फॉर्मूला पता है a ओमेगा, तो a भी दिया है 4, लेकिन सेंटीमीटर है, याद रखना. y सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में. क्यों? क्योंकि ये तो नंबर है ना, साइन ऑफ एनीथिंग इज जस्ट नंबर, राइट. जैसे साइन ऑफ 45 is 1 by root 2. देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज Vmax, ये तो पता लग गया, ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. फिर हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, इट इज a साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्डा. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर यहाँ पॉजिटिव लिखोगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेव जा रहा था, तो रिमेंबर इफ यू हैव नेगेटिव इन बिटवीन, इट इज वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव. अब जस्ट बाय कंपैरिजन यू हैव टाइम पीरियड एज 0.02, that is 2 into 10 power minus 2, 2 into 10 power minus 2. Good. So now a which is 4 centimeter, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर में, ओमेगा which is 2 pi by टाइम पीरियड, तो you have 4 into 10 power minus 2, 2 pi टाइम पीरियड is 2 into 10 power minus 2, कैंसल एंड कैंसल, ये और ये भी कैंसल, तो क्या आया 4 pi मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट, राइट. बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ I mean surety, just to make sure, of course this is what you are going to get, but फिर भी ये हो गया. दूसरा क्या पूछा था, wave velocity. What is wave velocity? n lambda. What is n? 1 upon t, और wavelength lambda is 100 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि x सेंटीमीटर में, तो नीचे भी सेंटीमीटर में. ये कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर, 1 मीटर. और दिस इज 1 by t, 1 by t, t कितना आया 2 into 10 पावर माइनस 2, और ये कितना आया 1. ये ऊपर जाके क्या होगा 100, 100 by 2 कितना 50, तो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड. गुड.
और क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। अभी तो फाइंड किया, ये फ्रीक्वेंसी तो है, फ्रीक्वेंसी तो फाइंड किया आपने, लैम्बडा तो 1 हो गया ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 टाइम पीरियड, और ये 1/2 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 100/2, मतलब ये भी आ गया 50 हर्ट्ज पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires are kept tight between the same pair of supports. Do you remember sonometer box? Sonometer box में you have bridges, knife edges. तो अगर सेम पेयर ऑफ सपोर्ट, मतलब दो वायर है लेकिन दोनों सेम पेयर ऑफ सपोर्ट्स में, मतलब दो सेम नाइफ एजेस में है, मतलब लेंथ इज सेम, बिकॉज लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन वन नाइफ एज टू अनदर, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ दैट वायर। टेंशन इन द वायर आर इन द रेशो, तो टेंशन का रेशो आपको दिया है T1/T2, आपको दिया है 2/1। उसके बाद रेडाई का रेशो R1/R2 का रेशो आपको दिया है 3/1, और डेंसिटी का रेशो आपको दिया है 1/2। ρ1/ρ2 इज नथिंग बट 1/2। आपको पूछा है रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अभी अभी हमने देखा था n 1/12 रूट ऑफ टी बाय पाई आर स्क्वायर रो। इसमें लेंथ क्या है? कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट, नो, लेंथ इज कांस्टेंट क्योंकि सेम पेयर में है, तो n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बाय रो और 1/r। गुड। तो नाउ आपको रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब n1/n2 पूछा है। n is inversely proportional to r, तो ये आ जाएगा R2/R1। t directly proportional to root of t, तो T1/T2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब ρ2/ρ1 अंडर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये R2/R1 3, T1/T2 2, ρ2/ρ1 2, बराबर, करेक्ट। R2/R1, R2/R1 is 1/3, वेरी गुड। तो ये 1/3 आएगा, फाइन, गुड। तो ये कितना आ गया? 4 का रूट कितना? 2, 2/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a glass tube of 1 meter length is filled with water. The water can be drained out slowly at the bottom of the tube. So we have a glass tube जिसका length 1 meter है, मतलब 100 centimeter है. So let's take a glass tube. Let us take a glass tube. और इस glass tube में जिसका 100 centimeter का length है, it is filled with water. So let us fill it with water. It is filled with water. It's filled with water and it can be drained out slowly from the bottom. So it is filled with water and the water can be drained out from the bottom. So you have more or less like this. ऐसा कुछ है. This is what you get. Then, and as they are saying कि water can be drained out, इसका मतलब नीचे एक पिन होल वगैरह कुछ कर देंगे. And from here the water will start coming out from the bottom. यहाँ से कुछ water बाहर निकलेगा, just for the sake of imagination. Good. तो एक काम करते हैं, इसको दूसरे पेज पे ही ले लेता हूं मैं, because we will need more space. Good. Now आगे इस क्वेश्चन में बोला है आपको, if the vibrating tuning fork of frequency 500 hertz is brought at the upper end of the tube and the velocity of sound is 330 meter per second, okay, then the total number of resonances obtained will be. तो सबसे पहले समझ लो, इसके ऊपर आपने एक ट्यूनिंग फोर्क लाया और आपको ऑफ कोर्स पता है 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नॉट वाटर, ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब रेजोनेंसेस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? एयर में, नॉट इन वाटर। अब बाय द वे, रेजोनेंस बनने के लिए एयर कॉलम होना चाहिए। जब ये फुल भरा हुआ है तो रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जगह ही नहीं है एयर कॉलम के लिए। तो क्या होगा? बिकॉज एज द क्वेश्चन सेज
क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि यहां से वाटर इज कमिंग आउट, एंड इफ द वाटर इज कमिंग आउट विच मींस लेवल ऑफ वाटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड व्हेन द लेवल ऑफ वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो क्या होगा कि देयर विल कम लेंथ, ऐसा एक लेंथ बनेगा जहां पे पहला मोड बनने की पॉसिबिलिटी होगी. इट विल ऑल डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ एयर कॉलम. पानी कम हो रहा है, तो पानी कम हो रहा है मतलब एयर को जगह मिल रहा है, और एयर जैसे जैसे एयर होगा वैसे वैसे देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स टू बी फॉर्म्ड. अब जब स्टेशनरी वेव बनता है उसको बोलते हो रेजोनेंस होना, राइट. तो पहला मोड, फर्स्ट मोड में what is the distance, what is the length of air column? Node to antinode. What is node to antinode distance, by the way? Lambda by 4. Node to antinode. Good. अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है? फ्रीक्वेंसी. कितना फ्रीक्वेंसी? 500. और क्या है? स्पीड कितना? 330 मीटर पर सेकेंड. तो v इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू v by n, that is 330 by 500, that is 33 by 50. This is wavelength. Correct. पहला रेजोनेंस मतलब पहला मोड, पहले मोड में you will have lambda is 33 by 50 और ये 1 by 4. Correct. This is 200. 200 मतलब 2 into 100. Okay, good. तो 33 by 200 मतलब 2 into 100. 100 जाएगा ऊपर, बन जाएगा -2. मैं थोड़े शॉर्टकट्स मारूंगा बिकॉज यू नीड टू डू द सेम. 1 and 16.5 मतलब 0.165 मीटर. ये आ गया लेंथ. इज दिस लेंथ लेस देन द लेंथ ऑफ द पाइप? यस. हाँ, तो पहला रेजोनेंस मतलब फंडामेंटल मोड हो सकता है. इन्होंने पूछा टोटल कितने रेजोनेंस पूछा है, क्या टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस, तो पहला पॉसिबल है. अब दूसरा है कि नहीं वो देखते हैं. अब इन दिस केस, इन केस नंबर 2, the water level further goes down because with time water is coming out, so further goes down. When it further goes down, second mode अगर हुआ तो second mode में एक half loop और एक full loop. This is what you have, and of course you must know that length in this case is ये एंटीनोड टू ये नोड लैम्डा बाय 4 था, और फिर नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 होगा, मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 मतलब 3 लैम्डा बाय 4. वैसे अभी आपको याद हो ही जाना चाहिए, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो यू शुड नो लेंथ भी कैसा आता है. लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4, सो ऑन सो फोर्थ. तो ये लैम्डा बाय 4 फाइंड किया क्या आपने अभी? 0.165 इंटू 3, ये 16.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो. 16 इंटू 3 48. 0.5 का 3 ऊपर से, अरे 160 पर एक काम करो, वेट अ मिनट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. 160 इंटू 3 पता है 480, ऊपर का 5 रह गया, ऊपर का 15 रह गया. 480 प्लस 15 कितना? 495. मतलब ये कितना? 0.495 मीटर. अच्छा, तो फिर ये सेकेंड मोड है. सेकेंड मोड में लेंथ आया 0.495. ये 1 मीटर से कम है क्या? यस. तो हो पाएगा? यस. गुड. देन चेक फॉर थर्ड वन. तीसरे मोड में क्या होगा? In case of third mode, water level will further go down, right? अब next mode, that is fifth harmonic, that is 2 loops and 1 half loop. So that will be 2 full loops and 1 half loop. अब आपको पता है, मैंने बता ही दिया, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, और लैम्डा बाय 4 कितना था? 0.165. अब ये वापस 165 इंटू 5 इजी है. 165 इंटू 5 1650 का आधा 0.825, 0.825 मीटर. ओ गुड. ये भी लेस देन 1 है,
तो ये भी पॉसिबल है। इसके बाद, अब इसके बाद एक लास्ट देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद मान लो ये पूरा ही गया, तो एवरीथिंग इज गॉन नाउ। इमेजिन अब इसमें बनेगा, what will you have is 3 full loops, 1 half loop, 3 full loops and 1 half loop, or this will be 7 lambda by 4, 7 into 0.16। अरे 16 7 जा ही 100 से ऊपर होता है, 16 6 जा ही 96 है, so this is greater than 100। I don't want to do calculation, but for sure this is greater than 1 meter। तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 3 रेजोनेंसेस पॉसिबल है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स द एंड ऑफ CET पार्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स।